So in the last lecture, we discussed about the cell cycle and cell division from the very starting. That zygote is that single cell that leads to formation of all the different cells in a multicellular organism, and it is the link between two generations. So how from a single cell the entire organism appears, that is the cell division. And there is a cycle. There is a cycle in which the cells are there and follow the rules of that cycle to switch between the dividing and non-dividing stages. That is known as the M phase and interphase. DNA replication and cell growth are two main events of the cell division, and these sequences are very well operated, genetically controlled sequences of duplication of its genome, synthesis of other constituent of cell, and eventually dividing into two daughter cells known as cell cycle. Phases of cell cycle, then we discussed about the interphase and the M phase, where M phase is having very less amount of time, and majority of time is there in the interphase, in the preparing phase. Cytokinesis is the cell, is the division of cytoplasm. Karyokinesis is the division of nucleus. And these two events are the main events of M phase. After that, there is G1, S, and G2 phases. In the S phase, there is a DNA replication. Then we discussed about these numericals and we addressed all these questions. फिर हमने बात की कि मसल सेल्स और न्यूरॉन्स जो हैं इनमें डिवीजन नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता न्यूरॉन में इसलिए, और मसल सेल्स फिक्स नंबर के साथ आती हैं, इनके नंबर नहीं पड़ते हैं. फिर देन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री-डिफरेंशिएशन से हमने रिकॉल किया और कहा कि G0 फेज में सेल्स चली जाती हैं G1 फेज में एंटर करने के बाद, और unless called on to do so, they will not proliferate. So वो डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल हमने लिया. प्लांट्स और एनिमल्स में हमने कहा कि डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में माइटोसिस होती है. एक एक्सेप्शन इसका ड्रोन ले लिया हनीबीज में, और प्लांट्स में माइटोसिस होता है हैप्लॉयड एज वेल एज डिप्लॉयड में. यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को रिकॉल करते हैं और वहाँ पर जो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. तो जो हैप्लॉयड्स होते हैं उसमें भी माइटोसिस होगा यहाँ पर. After that, we have to start from the M phase today. So let's start. Okay, so let's start the M phase. This is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of the cell. M phase, most dramatic period of the cell cycle. Why? Because such a great disturbance in otherwise stable content within the cell is not observed anywhere else. आपको कभी और इतना ज्यादा आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं दिखाई देंगे, इतने सारे एडजस्टमेंट्स, इतने सारे मैकेनिज्म्स, इतनी सारी मूवमेंट्स, इतने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको नहीं दिखाई देंगे जैसे कि एम फेज में दिखाई देते हैं. तो व्हाट डू दे मीन बाय मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, ये चीज हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. सो involving a major reorganization of virtually all the components of the cell. सारे ही components actually वो reorganize होते हैं. So there is a major reorganization. Next, since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same. Okay, let me remind you. जो एम फेज है, या मतलब जिसको हम एम फेज इंटरफेज बोलते हैं, वो जो एम फेज है वो एक्चुअली माइटोसिस है. तो माइटोसिस की बात कर रहे हैं. माइटोसिस मियोसिस दो टाइप के सेल डिवीजन है, उसमें से एम फेज माइटोसिस को बोला जाता है जनरली, उसकी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है पेरेंट में और प्रोजेनी में वो सेम रहने वाले हैं. ठीक है, क्रोमोसोम्स के नंबर पेरेंट और प्रोजेनी में सेम रहने वाले हैं. इस वजह से हम इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन. ओके, that's why it is known as the equational division. ऑलरेडी बोर्ड में लिखा हुआ है. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है और मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कहने का क्या मतलब है. Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division, it is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. ये just for the sake of convenience to understand the concept. हमने कहा भाई प्रोफेज यहाँ से यहाँ तक है, मेटाफेज यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये तो एक प्रोसेस चल रही है ना. ये प्रोसेस चल रही है, कहीं पर बैरियर नहीं है.
कहीं पर बैरियर नहीं है। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए कहा है कि हाँ भाई, जब क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं और वो मेटाफेजिक प्लेट पर आने के लिए शुरुआत कर देते हैं वो, तो वो प्रोफेज कंप्लीट हो जाती है। जब वो मेटाफेजिक प्लेट पे वो अरेंज हो चुके होते हैं, तब भाई वो मेटाफेज है। जब वो मूव होना शुरू कर देते हैं टर्मिनल्स की तरफ, दोनों पोल्स की तरफ, तो वो एनाफेज है। और जब पहुंच चुके होते हैं और फिर से क्रोमेटिन बन चुके होते हैं, तो वो टीलोफेज है। ये हमने कहा है, जिससे कि हम इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को डिफरेंट स्टेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाए। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं है यहाँ पर। तो कई बार कंट्रोवर्सीज भी हो जाएंगी अगर आप टू द पॉइंट नहीं रहोगे तो, क्योंकि ऐसे तो कुछ है ही नहीं कि भाई प्रोफेज की बाउंड्री ये है, मेटाफेज की है। हम ये कहते हैं कि एक चीज होनी शुरू होती है, दूसरी चीज होनी खत्म होती है, तो ये फेज शुरू हो जाती है, फेज खत्म हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो वी विल बी फॉलोइंग लाइन बाय लाइन द एनसीईआरटी to avoid any kind of confusion and any kind of overlapping between the options which we may have to select during attempting any MCQ. So clear cut lines cannot be drawn, ये चीज समझ में लीजिए। So अब 4 stages of nuclear division है यहाँ पे। बहुत अच्छा बोला है, न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैरियोकाइनेसिस। these are the terms, these are the phases which represents कैरियोकाइनेसिस। हम कैरियोकाइनेसिस की बात करने वाले हैं। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेजेस हमारे पास हैं एम फेज के अंदर। तो पहली फेज हम लोग डिस्कस करने जानते हैं, प्रोफेज। पहली बात, फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की। किसके बाद आती है? एस और G2 फेज के बाद आने वाली फेज है। इसको आप फिर से देख लो, यहाँ पर देखिए, एस फेज सेकेंड फेज थी इंटरफेज की, थर्ड था G2 फेज। G2 फेज के जस्ट बाद ये हमारे पास आ जाता है प्रोफेज। ओके, दिस इज द प्रोफेज। सो in the S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. ये important point है, क्योंकि प्रोफेज जो पहली फेज है, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, वो है ही यही कि इट इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। व्हाट इज द क्रोमोसोमल मटेरियल? दिस डीएनए, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है ना, यही क्रोमोसोमल मटेरियल है। ये कंडेंस होने लगेगा, ये कंडेंस होने लगेगा। ये डिस्टिंक्ट नहीं होते, ये इंटरवाइंड होते हैं। कब? एस और G2 फेज के दौरान। तो आपस में उलझे हुए हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर बनना शुरू होता है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ओके, कई बार अगर हम और थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ना चाहें और इवेंट्स को ज्यादा ले लें, तो हम कहते हैं अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज तक आते आते क्रोमोसोम्स जो हैं वो फुली फॉर्म में आ जाते हैं, अपने फुल फ्लैश्ड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। दे कैन बी इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पर एस और G2 फेज में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो बने होते हैं वो दिखते नहीं है। एस फेज में जो बने होते हैं वो एस और G2 फेज में अलग अलग नहीं दिखते हैं, क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं दिखते हैं। प्रोफेज की खासियत ही यही है, इसको हम पहचान सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी होती है कंडेंस होने की, कंडेंसेशन होने लगता है। ठीक है, जैसे वेपर्स कंडेंस, जब वेपर्स कंडेंस होती है तो ड्रॉप बन जाती है। ठीक है, जब हमारे पास जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर डिटेरियोरेट हो जाता है, और जैसे जैसे एग को बॉईल करने पर प्रोटीन कंडेंस होकर व्हाइटिश स्ट्रक्चर दे देता है, वैसे ही विजिबल हो जाती हैं चीजें हमारे लिए यहाँ पर प्रोफेज में। यही इसकी मार्किंग है, इसके इनिशिएशन की। So the chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. Untangled, अब दिखने लगेगा, chromosomal material दिखने लगेगा because of the process of chromatin condensation. Chromatin is a thread. Chromatin is a thread of DNA molecules. Okay, and when it condenses, it undergoes supercoiling. It undergoes supercoiling. So earlier in the S phase, there are new DNA molecules. These new DNA molecules remain as it is in the G2 phase.
But when they enter into the M phase, and the first phase, that is known as the prophase, these DNA molecules are converted from chromatin thread to chromosomes. And it is the process of what? Condensation. इसको हम बोलते हैं कंडेंस हो रहे हैं क्रोमेटिन, किसमें? मच बिगर स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। पहली बात ये हो गई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। अब यहाँ पर एस फेज की एक खासियत, एक और कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि एस फेज में ही सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, सो एस फेज में जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर चुका था, begin to move towards the opposite poles। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आ गई यहाँ पर, the centrioles जो कि एस फेज में बने थे, अब वो पोल्स पे मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। कंप्लीशन कैसे पता चलेगा? ये तो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन जो हुआ वो मार्किंग हो गई कि भाई प्रोफेज शुरू हो चुका है। अब कंप्लीशन कैसे पता चलेगा? पहली बात, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। आपको क्रोमोसोम दिख गए, पहली बात। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। एक जनरल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का आपको पता है, उस जनरल स्ट्रक्चर से दो क्रोमेटिड अटैच रहते हैं। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब G1 फेज में हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, एस फेज में हमारे पास, अब मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं जिससे समझ में आए। ठीक है, ऐसा दिखेगा नहीं, ऐसा दिखेगा नहीं। ठीक है, एक सेंट्रल सेंट्रोमियर से अटैच्ड ये एक क्रोमेटिड था पहले, अब यहाँ पर दो क्रोमेटिड हो गए हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं क्योंकि ये कॉपीज हैं। लेकिन एस फेज में आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा नहीं। ठीक है, सेंट्रोमियर एक जगह रहता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ना, तो डीएनए रेप्लिकेट कैसे हो सकता है? अगर क्रोमोसोमल स्टेज में डीएनए रहेगा तो ये अनकंडेंस्ड स्टेज में रहता है, थ्रेड स्टेज में रहता है। बाद में जब ये कंडेंस हो जाएगा तो हमें प्रोफेज में ये ऐसा दिखेगा, here in prophase। इसको मैं बॉक्स में कर दूं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि क्रोमेटिन पे है ये। यानी कि प्रोफेज में ऐसा विजिबल हो जाता है, ऐसा विजिबल हो जाता है। तो पहली बात तो ये होगी कि भाई क्रोमोसोम आपको दिखने लगेंगे, और वो भी और अच्छे से बता दिया एनसीईआरटी ने कि भाई दो क्रोमेटिड आपको दिखेंगे एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हुए। दूसरी बात, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, और वो भी इनिशिएशन। देखो यही मैं कह रहा हूँ आपसे, ये भी इनिशियल यही बताया गया था कि ऐसी कोई डिमार्किंग नहीं है क्लियर कट। हमने कहा भाई इनिशिएशन होता है, माइटोटिक स्पिंडल बनने लगते हैं, शुरुआत हो जाती है, यानी सेंट्रियोल पहुंच गए हैं अपने अपने पोस्ट पर, अब ये बनना शुरू हो गया। ठीक है, हर डायरेक्शन में बनते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म केवल यही रहता है, साइटोप्लाज्म यहां पर मिलेगा, इसलिए यहां पर इसकी ग्रोथ फर्दर होती जाती है। तो दो चीजें यहां पर हमारे सामने अभी तक हैं, पहला तो क्रोमोसोम बन गया, और दूसरा यहां पर माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली हो गई, माइक्रोट्यूब्यूल्स। द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। जो बाकी प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं ना ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। यस सर, वो पूरा पॉइंट बदल रखा नई वाली में। हाँ प्लीज बताओ। The centromere which had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite pole of the cell. Each centromere radiate out microtubule called astral. The two Astral astrae rays। together with spindle fiber form हाँ, together form mitotic apparatus.
माइटोटिक एपरेटस, हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच गए हैं, ये अपोजिट पोल्स हैं। यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये रेडिएट करना शुरू करते हैं, जिनको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। ये एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। ओके, now cells at the end of prophase when viewed under a microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope। ये नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप तो डिग्रेड हो चुका होता है प्रोफेज के दौरान। एंड ऑफ प्रोफेज की इस लाइन को सुन के आप ये चीज समझ लीजिए कि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब कॉम्प्लेक्सेस आपको नहीं दिखते हैं। डिग्रेड हो चुका होता है न्यूक्लियर एनवेलप और पूरा का पूरा जो सेल है उसमें प्रेजेंट होते हैं, उस पूरे स्पेस को यूज करेंगे क्रोमोसोम्स, उस पूरे स्पेस को यूज करेंगे। सो दिस इज द प्रोफेज। ओके, तो यहाँ पर मेनली क्या हो गया, अगर दो लाइन में हमें बोलना हो कि प्रोफेज में क्या हो जाता है, पहला क्रोमोसोम अपीयर हो जाते हैं, दूसरे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दैट। ओके, दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। मेटाफेज की बात करते हैं। मेटा मीन्स सेकेंड, ओके, फेज मीन्स स्टेज, सो इट इज द सेकेंड स्टेज। The complete disintegration of nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence, the chromosomes are spread throughout the cytoplasm of the cell, जिसकी just अभी हम बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम पूरे स्पेस का यूज करेंगे आप, ठीक है। तो which what change actually represents start of the metaphase? Complete disintegration of the nuclear envelope marks. सो क्रोमोसोम्स जो है अब थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म वो स्प्रेड है। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट। आपसे पूछेंगे कंडेंसेशन कहाँ शुरू होता है, आप कहेंगे प्रोफेज में। आपसे पूछेंगे क्रोमोसोम्स कहाँ दिखने शुरू हो जाते हैं, आप कहेंगे प्रोफेज में। आपसे पूछा जाएगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट कहाँ होता है, आप कहेंगे मेटाफेज के स्टार्ट में। They can be observed clearly under the microscope. This then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied. ये भी important point है कि which of the following phase is chosen to study the morphology of chromosome? It is metaphase. तो पहली बात हमने पढ़ ली complete disintegration of nuclear envelope, दूसरा condensation of chromosome complete, तीसरा morphology of chromosome को discuss study करने का ये सबसे important phase है, सबसे इजीली यहाँ पर स्टडी होते हैं। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, जिसका हमने डायग्राम यहाँ पर बनाया था, ये वाला, ठीक है। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये तो दिस इज द मेटाफेजिक क्रोमोसोम। Small disc-shaped structure at the surface of centromere are called kinetochore. They are defining the kinetochore now. What is a kinetochore? Kinetochore are small disc-like structure which are present on the surface of centromere. Surface of centromere मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ रेड से कर देता हूँ। ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इधर और इधर, जिनसे डायरेक्टली आप पाएंगे कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हैं। ये जो स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को हमने कहा है काइनेटोकोर। ओके, सो काइनेटोकोर इज दैट पार्ट or that disc shaped proteinaceous structure that is present over centromere in the form of disc and from where the spindle fibers are attached. Okay, these are the site of attachment of spindle fibers to the chromosome that are moved into position at the center of the cell. अब ये जो साइट ऑफ अटैचमेंट है काइनेटोकोर, इनसे स्पिंडल फाइबर्स जो कि यहाँ पर बन रहे थे, कहाँ, प्रोफेज में बनना शुरू हो गए थे,
अब वो रेंडमली यहाँ पर बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद मेटाफेजिक प्लेट जिसको हम बोलते हैं, दिस इक्वेटोरियल लाइन इज नोन एज द मेटाफेजिक प्लेट। इस मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स। ओके, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर moved into position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator, with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole, and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. ठीक है, यहाँ से कनेक्शन इस तरह हो जाएगा, इधर से कनेक्शन इधर हो जाएगा। ओके, इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर से इधर कनेक्शन है, इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर से इधर कनेक्शन है। तो अपने अपने तरफ के काइनेटोकोर से अपने अपने तरफ से जो पोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर है वहां से कनेक्शन हो चुका है। नाउ with one chromosome, okay, yeah, the plane of alignment is known as the metaphasic plate. This is known as the metaphasic plate. तो अगर हम सम अप कर दें तो क्या पता चलेगा भाई, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। यही दो चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, मेन अगर देखें तो स्पिंडल फाइबर आ गए, काइनेटोकोर से अटैच हो गए और मेटाफेजिक प्लेट पर सारे क्रोमोसोम्स को लेकर आ गए। ये कैसे क्रोमोसोम है? ये क्रोमोसोम है एस फेज में जो डुप्लीकेशन हुआ था, वहां पर सेंट्रोमियर से अटैच दोनों क्रोमेटिड थे, अपने अपने तरफ के काइनेटोकोर से अपने अपने तरफ के स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि बिगिनिंग कैसे आप बताएंगे? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर एनालॉग का, यही बिगिनिंग है। फिर इसमें क्रोमोसोम के कंडेंसेशन की क्या स्टेज है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर जो क्रोमोसोमल स्टडी है वो कहाँ पर की जाती है? इसी स्टेज पे की जाती है। फिर हमने काइनेटोकोर के बारे में डिस्कस कर लिया कि काइनेटोकोर अपने अपने डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, अपने अपने साइड पे सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाएगा। यहीं से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और उनको फिर भी मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज कर देते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर कहें तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए और मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंजमेंट हो गया, ये मेटाफेज हो गई। आफ्टर दैट एनाफेज। एना मीन्स अवे, फेज मीन्स स्टेज। So it is the third stage when the chromosomes are moving away. Away and toward, away from each other and towards their respective poles. Away from each other and towards their respective poles. So see, on the onset of anaphase, जब anaphase शुरू हुई, each chromosome arranged at metaphasic plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids now referred to as chromosomes of the future daughter nuclei begin their migration towards two opposite poles. Okay, away from each other towards their opposite poles. Split क्या हुए? मेटाफेजिक प्लेट पे जो क्रोमोसोम्स थे अरेंज थे वो सेंट्रोमियर से टूट जाते हैं। ये रहा काइनेटोकोर इसका, ये काइनेटोकोर इसका है, बीच में है सेंट्रोमियर, यहाँ से अटैचमेंट था, इधर से अटैचमेंट था, अब ये यहाँ से हो जाएगा स्प्लिट। ठीक है, ये यहाँ से स्प्लिट हो गया और अब ये इस पोल पे जाएगा और ये दूसरे पोल पे जाएगा। ये मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो जाता है, पहली बार। दूसरा, as each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome is towards the pole. Yes, ये सेंट्रोमियर है, ये इस पोल की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा वाला सेंट्रोमियर है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो दूसरा सेंट्रोमियर है ये इस पोल की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द पोल, centromere is towards the pole, and hence
at the leading edge with the arms of chromosome trailing behind. जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स है वो पीछे की तरफ है, ठीक है, और ये लीड कर रहा है. Centromere is leading towards the pole and the arms are trailing behind. Thus, anaphase stage is characterized by the following key events: centromere split and chromatid separate, chromatid move to opposite pole. Okay, easy, like this. Next, telophase. At the beginning of the final stage of mitosis, okay, this is the question point. Which of the following is the final stage of mitosis? It is telophase. Okay. The chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality. Where they have find their individuality? During the prophase. Do you remember? Prophase में यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ था, कॉम्पैक्शन हुआ था, कॉम्पैक्शन की वजह से क्रोमोसोम बने थे. टीलोफेज में क्या हो रहा है? डीकंडेंस हो रहे हैं. The individual chromosome can no longer be seen and chromatin material tend to collect in a mass in the two poles. अब ये जेनेटिक मटेरियल का मास बन के रह जाता है. इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये भाई क्रोमोसोम है कि नहीं है. ठीक है, अब आप मतलब डिफरेंशिएट क्या, अब आप ये कहोगे कि ये क्रोमोसोम नहीं है. ठीक है. This is the stage which show the following key events. पहला तो की इवेंट हो गया कि क्रोमोसोम क्लस्टर at opposite spindle poles and identity is lost as discrete elements. फिर न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स. डिसअसेंबल कहाँ हुए थे? प्रोफेज में. क्रोमोसोम क्लस्टर जहां पर हैं, जहां पर उनका डीकंडेंसेशन चल रहा है, एक तरफ डीकंडेंसेशन चलेगा, दूसरी तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होगी, और न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर फिर रीफॉर्म, ये दोबारा बन जाते हैं. ये बात हमने की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की. आयो ये क्लियर है? यहाँ तक कुछ नहीं क्लियर है तो पूछिए सर. हाँ जी. इसमें इंटरवाइंड का मतलब आपस में उलझे हुए. यस, बाकी लोग क्लियर है भाई सभी को बेटा? यस सर. Now let's discuss about the cytokinesis. Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter cells, but the cell itself is divided into two daughter cells by a separate process called cytokinesis, at the end of which cell division is complete. आपसे पूछ लेंगे कैरियोकाइनेसिस पे सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ या साइटोकाइनेसिस पे, तो आप कहेंगे साइटोकाइनेसिस पे कंप्लीट हुआ. कैरियोकाइनेसिस तो होती है at the end of which cell division is complete. Okay, so जो माइटोसिस है उसमें हमारे पास मतलब किसी भी टाइप के सेल डिवीजन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. तो साइटोकाइनेसिस के बाद सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा. इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ ए फरो. हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की और हम बात करते हैं फरो की. एक डीप फरो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो धीरे धीरे और डीप होता जाता है. अल्टीमेटली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है तो ज्वाइन कर लेंगे दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे को, और साइटोप्लाज्म जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, जबकि प्लांट सेल में अलग प्रोसेस होती है. तो सबसे पहले एनिमल सेल का देखिए. ये जो फरो आ रहा है इसी की बात करें. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, जैसे वो जो बलून बेचने वाला होता है पार्क वगैरह में, बीचेस के पास, ठीक है, शाम को निकलते हैं सब. ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो गुब्बारे होते हैं, उनको डिफरेंट शेप दे देते हैं. जब शेप देते हैं तो बीच में इस टाइप से दबाते हैं और उसके बाद फिर घुमा देते हैं तो दो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं बलून के. तो वैसा ही यहाँ पर घुमाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर है. इट इज फ्लूइडिक बट नॉट फ्लूइड एक्चुअली. ओके, इट इज मेंटेनिंग इट्स स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस. ओके, तो जो फरो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है चारों तरफ से ये बन रहा है, इसके बनने की वजह से यहाँ पर अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म रहेगा नहीं, ये डीप होता जाएगा, ये और डीप होता जाएगा, फिर ये और डीप होता जाएगा. अल्टीमेटली ये दोनों मर्ज हो जाते हैं और दो सेल्स बन जाती हैं. ठीक है, सेंट्रियोल का मूवमेंट होता है क्या? नहीं. क्यों? जरूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि वो अपोजिट पोल्स पे ऑलरेडी हैं.
तो जब सेल्स का मूवमेंट, ये जब सेल का डिवीजन होगा यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो वो ऑलरेडी अपोजिट पोल्स पे है भाई, उनको कहीं मूव होने की जरूरत नहीं थी। एक ही सेल में जाना होता तो मूव करने की जरूरत पड़ती, वो जाना नहीं है। तो एनिमल सेल में फरो के फॉर्मेशन से होता है। प्लांट सेल की बात करें, यहाँ पे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, आपको पता है। इसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। कब? अभी, इसी दौरान। लेट मी इरेज इट एंड रीड्रॉ इट। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस टाइप से रहने वाला है, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर इसी टाइप से रहेगा, ये फरो नहीं बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, कैल्शियम पैक्टेट का एक्युमुलेशन शुरू होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का यहाँ रोल होता है, फ्रैग्मोप्लास्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये धीरे 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 अल्टीमेटली ये पेरीफेरी तक टच कर जाएगा। और पेरीफेरी पे जब टच करता है तो यहाँ पर अब एक सेल वॉल ऊपर बन जाती है और एक सेल वॉल इधर बन जाएगी, बीच का ये कहलाएगा मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। ओके, see this is known as the cell plate. ओके, इनिशियल जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं दिस इज अ सेल प्लेट। नाउ सी, wall formation start in the center of the cell, grows outward to meet the existing lateral walls. जो lateral walls हैं यहाँ पर, इधर यहाँ से ये अटैच हो जाती है, यहाँ तक एक्सटेंड होंगी, and the formation of new cell wall begins with the formation of a simple precursor. Which is that simple precursor? That is known as the cell plate. Okay, I call that as phragmoplastic complex. It is common, so you should be aware about this term, phragmoplastic complex. Okay, so at the time of cytoplasmic division, simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella. यही middle lamella बनाएगा आगे between the walls of two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter cells. यहाँ पर cytoplasmic division हो रहा है, यहाँ पर distribution हो जाता है, certain proteins are involved in that. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. अब ये special case है. जिसकी वजह से सिंसीशियम बनता है। न्यूक्लियस डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड करे, इससे पहले ही न्यूक्लियस फिर से डिवाइड हो गया, फिर डिवाइड हो गया, अगेन एंड अगेन डिवाइड होता रहा। उसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई एक सेल के अंदर, जिसको हमने कहा सिंसीशियम। सिंसीशियम, ओके, फॉर्मेशन ऑफ सिंसीशियम। सिंसीशियम इज द कंडीशन ऑफ ए सेल विद मोर देन वन न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियर। सो लिक्विड एंडोस्पर्म जो कोकोनट में बनता है वो इसी का एग्जांपल है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते जाते हैं, और जो पानी हम पीते हैं उसका, नारियल का, वो सारा का सारा लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, हाँ जी बताएं, साइटोकाइनेसिस में कोई प्रॉब्लम हो गया? क्लियर? Yes, sir. Okay. Now let's discuss what the significance of mitosis. माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन। अब इक्वेशनल क्यों कहा ये जरा आप समझ लो। वापस जाते हैं, यहां पर जो ट्रांजिशन टू मेटाफेज के दौरान आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, इस स्ट्रक्चर में आपके पास जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो एज इट इज हैं। डीएनए कंटेंट डबल हुआ है, क्रोमोसोम के नंबर इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि सेंट्रोमियर से अटैच है ना अभी भी। अगर वो सेंट्रोमियर से अलग अलग होते तो आप उनको 2 काउंट करते, आप इसको अभी 1 ही काउंट करोगे। यू विल काउंट इट लाइक 1। ओके, पहले क्या था? पहले ये था, तो पहले क्या काउंट कर रहे थे? 1। तो पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। सेंट्रोमियर तब भी 1 था, अब भी 1 है। आर्म से बढ़ गई है बस।
क्रोमेटिड 2 हो गए, बस डुप्लीकेशन है एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड बहुत बढ़िया आया था, कहां पर होगा वो, एनाफेज में। एनाफेज में होगा, ये रहा, इस वर्ड की बात कर रहा हूं, स्प्लिट। स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। मैं क्यों बार बार इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जब मियोसिस करेंगे तो यहीं पर डिफरेंस आएगा। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है वहां पर कुछ स्प्लिट नहीं होता, वहां पर स्प्लिट नहीं होता है सेंट्रोमियर, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर स्प्लिट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें इक्वेशनल डिवीजन, अलग अलग दोनों पोल्स पे देखिए अलग अलग चला गया। एनाफेज को देखो ध्यान से, ठीक है, एक क्रोमेटिड ऊपर गया, दूसरा क्रोमेटिड नीचे गया, 2 क्रोमेटिड बन गए। पहले एक ही क्रोमेटिड मतलब एक क्रोमोसोम था, कहां पर, यहाँ पर जनरल कंडीशन जब थी, ठीक है। लेकिन एस फेज में क्या हो गया, 2 क्रोमेटिड बन गए, मेटाफेजिक क्रोमोसोम का निर्माण हो गया, और वो मेटाफेजिक प्लेट पर जब आ जाता है तो अब उसको स्प्लिट होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से अटैच करने के बाद। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। So we were actually discussing about the number of chromatid and the fate of those chromatids. So number of chromatid becomes double during S phase, which is quite observable during this transition to metaphase diagram. और उसके बाद फिर ये अपोजिट पोज पर चले जाते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाता है। तो इक्वेशनल डिवीजन कहा गया है इसलिए। तो मैं एक्चुअली इक्वेशनल डिवीजन ग्रुप डिस्कस कर रहे थे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंडर। सो इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली। डिप्लॉयड सेल्स में ही जनरली माइटोसिस पाया जाता है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम स्पेशल इंसेक्ट्स, बात कर दी यहाँ पर ड्रोन की, हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। लोअर प्लांट्स यानी कि हम एल्गी की बात कर रहे हैं। It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. बहुत ज्यादा है। Are you aware of some example where you have studied about haploid and diploid insects? Yes. हनीबी का यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं, हनीबी के बारे में हमने डिस्कस किया है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स वाली बात। इससे जस्ट पहले बोला है कि इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या क्या है मतलब, बात यह है कि अगर यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो जो इंफॉर्मेशन एक डिप्लॉयड सेल के पास है जिससे कि पूरी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग चल रही है, वो नहीं चल पाएगी अगर हैप्लॉइड में बढ़ जाएगा वो, ठीक है। बिकॉज आपको पता है ना, जेनेटिक्स को कनेक्ट कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली बात, तो यहाँ पर एक ही एलील रहेगा तो वही अपने आप को डोमिनेट कर जाएगा, जबकि जो जाइगोट बना था उसके पास इंफॉर्मेशन थी दोनों की और एक कंबाइंड एक्सप्रेशन वो दे रहा था। लेकिन अगर आगे माइटोसिस नहीं हुआ तो वो सक्सेसफुली अपने कैरेक्टर्स को जो जाइगोट ने इनहेरिट किया था वो यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और आपको पता है जो इनहेरिटेंस होता है वो सर्वाइवल के लिए कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देता है, तो वो कैरेक्टर्स यहाँ पर शो ही नहीं हो पाएंगे अगर सिंगल सेट रह जाएगा तो। Then mitosis results in the production of diploid daughter cells with the identical genetic complement usually. यहाँ पर आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है, जाहिर सी बात है। आप देखिए अगर हमारे पास एक क्रोमेटिड ये है और यहाँ पर एस फेज आएगी, तो एस फेज के बाद ये एज इट इज एक और बन जाएगा, एक और बन जाएगा, ठीक है, एज इट इज बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा। ये दोनों जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये आइडेंटिकल होंगे। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होती है, ये बहुत ऑब्वियस हो जाना चाहिए आपके लिए इस लेवल पे। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यस, जब भी सेल ग्रोथ होगी बेटा, जब भी सेल ग्रोथ होगी, जो साइटोप्लाज्म है वो तो एकदम से नहीं बढ़ता, लेकिन जो न्यूक्लियर कंटेंट है, न्यूक्लियर कंटेंट को तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो हम ये कहते हैं कि जो N/C रेशियो है इसका क्या होगा, न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ गया, साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया, तो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। सो ये जो रेशियो है ये इंक्रीज हो जाता है, इट इंक्रीजेस, ठीक है। देयरफॉर इट बिकम्स एसेंशियल, therefore it becomes essential for cell to divide
एंड रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब यहाँ पर दूसरी बात बताइए, मैं आपको कुछ और बता रहा था। मैं ये बता रहा था कि जब डिवाइड होगा तो n/c रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए अगले डिवीजन से पहले इंटरफेस की जरूरत है, जिससे वो फिर से उतना साइटोप्लाज्म रिस्टोर कर ले कि डिवाइड हो पाए। यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड किया है कि जब सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है, जब सेल ग्रो हो रही है तो उसमें जो n/c रेशियो है वो घट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। क्यों? बाय गैदरिंग द न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, बाय डिवाइडिंग ऑफ द डिवीजन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, फिजियोलॉजी उसकी ज्यादा है, बाइनरी फिजन से वो डिवाइड करता जाएगा तो ये बड़ी होती जाएगी सेल, इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर कंटेंट कम हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए तुरंत क्या करना पड़ेगा, हमें सेल डिवीजन करना पड़ेगा, माइटोसिस करनी पड़ेगी। तो ये भी इसका सिग्निफिकेंस। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या हो गया? पहला सिग्निफिकेंस हो गया डिप्लॉयड सेल की ग्रोथ, जो पूरी बॉडी में डिप्लॉयड सेल है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी ग्रोथ होना, ये पहला है। इसके बाद है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो आउट ऑफ ऑर्डर हो रहा है उसको संभालना। फिर अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सेल रिपेयर तीसरा, द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। भाई स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, यहाँ पे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम अपर लेयर है, तो ये हटेगी तो जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है, जो बेसमेंट वाली लेयर है, वो नई सेल्स बनाएगी। तो नई सेल्स कैसे बनाएगी? सेल रिपेयर कैसे होगा? ये लेयर रिपेयर कैसे होगी? जब नई सेल्स आएंगी नीचे से, तो वही माइटोसिस से होना है। जो गट की लाइनिंग है, जो स्टमक की लाइनिंग है, मिलियंस ऑफ सेल्स बन रही हैं वहां पर, ठीक है, क्योंकि HCl के एक्शन से कितना ही म्यूकस बचा ले, लेकिन फिर भी बहुत सारी सेल्स को तो जो है सेक्रीफाइस होना ही पड़ता है। ऐसा है, ब्लड सेल्स कॉन्स्टेंटली बीइंग रिप्लेस्ड, ब्लड सेल्स भी, इनका भी रिप्लेसमेंट हो रहा है। क्यों? 120 डेज का लाइफ स्पैन खत्म हो रहा है, 1 वीक का लाइफ स्पैन उसका खत्म हो रहा है प्लेटलेट्स का, ठीक है। और यहाँ पर फ्यू वीक्स फ्यू आवर्स टू मैनी ईयर्स वाली बात है, यहाँ पर भी तो कंप्लीट होगा, क्योंकि मेमोरी सेल कितनी होती है हमारी बॉडी में एज कंपेयर टू अदर ब्लड सेल्स, अदर वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, इजोनोफिल है, 1 वीक अराउंड इनका लाइफ स्पैन होगा, तो उसको भी डिवीजन के थ्रू ही तो बनेगी। So it is not just about the cells which you are seeing, just the skin cell or the liver cell. It is also about the linings. Okay, gastrointestinal tract, that is very important. All the blood cells, that is very important. So mitotic division in the meristematic tissue now we are talking about. So third was the cell repair. Cell repair, or don't mistake it with the repair of cell particularly. No, they are talking about replacement of the cells. Okay, so cell repair, it doesn't mean that mitosis do something within the cell that the impaired cell become repaired. No, it is not like that. They mean to say कि जो ऊपर वाली लेयर होती है वो हट जाती है, तो भाई नई सेल्स उसका रिप्लेसमेंट कर लेती हैं, ये बात है। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम। हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है, और वहां हमें पता है कि कॉर कैम्बियम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है, ठीक है। वहां पर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है प्लांट की थ्रू आउट दियर लाइफ। वो जो डार्क वुड और लाइट वुड बनता है, जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बनता है, जो लेट वुड और अर्ली वुड बनता है, उन सब की अगर हम बात करते हैं तो वो कंटिन्यूअस ग्रोथ की तो निशानियां हैं। भाई एनुअल रिंग कैसे बनेंगी? वैसी तो बनती हैं, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होके तो बनती है। तो कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट लाइफ हो पाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से, वहां पर भी तो माइटोसिस ही है, ठीक है। सो दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। सो पहला पॉइंट हो गया ग्रोथ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया रिस्टोरेशन ऑफ द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो कि कम होता जाएगा जैसे जैसे कि सेल को काफी टाइम हो जाएगा डिवाइड किए हुए, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही सिग्नलिंग का काम करते हैं कि सेल कब डिवाइड होगी कब नहीं। थर्ड हो गया सेल के रिपेयर, और फोर्थ हो गया हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि प्लांट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके, यस सर। ठीक है। हाँ जी तो सर। यहाँ पर हम अपना लेक्चर भी कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस से, ठीक है। मियोसिस में हम मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेज जो है काफी लॉन्गेटेड फेज होती है यहाँ पर, जिसके बाद डिफरेंस आ जाता है मेटाफेज जब बात करते हैं। आपके सामने जरा गौर से देखो, इसको ध्यान से देखो। मेटाफेज फर्स्ट को देखो,
मेटाफेज फर्स्ट पे जो एक ही क्रोमोसोम है वो दोनों पोल्स के स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट नहीं है, दिख रहा है साफ? हाँ जी। और इसीलिए जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एज इट इज पेयर्ड क्रोमेटिड चले जाते हैं पोल्स पर। वहां पर क्या हो गया था, स्प्लिट होके एक एक गया था। यहां पर क्या दिख रहा है हमें, यहां पर वो दोनों ही क्रोमेटिड चले गए ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस यहीं पर आ जाता है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि भाई 2n से n हो गया। कैसे कह देते हैं वो हम देखेंगे आगे। बाकी एनाफेज, टेलोफेज और मेटाफेज वो सारी जो स्टेजेस होती हैं वो लगभग सेम ही होती हैं, इसलिए वहां पर कुछ ज्यादा मैकेनिज्म नहीं होगा। सारी बात, सारा गौर, सारा जो हमारा ध्यान होगा वो ये समझने पे होगा भाई 2n से n कैसे हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं और उनमें डिवीजन कैसे हुआ, ठीक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग मियोसिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो अभी इसको रिवाइज करो, इसको लर्न करो, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू अगेन, कल मिलते हैं, ठीक है।